Today we shall discuss on a concept that is effective teacher education program, and in the process we shall discuss certain parameters and elements that is instrumental for the effectiveness of any program. But before the start of the lecture, one thing is very important to mention, that effectiveness does not depend on only one factor. It has its repercussion on another factors as well. Suppose you have to find an effective teacher. So the teacher is very qualified, he or she is having so many other skills besides the communication skill, but the institution, the teachers, the other members among which the teacher is coming directly or indirectly influence the effectiveness of a teacher, and same is true with respect to any program. So the effectiveness of a program does not depend on one factor, but the effect of other factors on the same factor is also important. And so in order to understand the concept of effectiveness, we must keep in mind that effectiveness is always in integration. So we have to understand the concept effectiveness, whether it is for a teacher or whether it is for a program, in integration. कि दूसरे जो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर बहुत यदि मजबूत है, दुनिया का बेहतरीन टीचर एजुकेटर यदि किसी संस्था में है, तो ये जरूरी नहीं है कि इस संस्था में वो उतना प्रभावशाली हो, क्योंकि दूसरी संस्था में वो प्रभावशाली हो सकता है, वहाँ के फैक्टर जिससे वो इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस संस्था में भी वो इफेक्टिव हो, क्योंकि दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो उसको प्रभावित करते हैं. सो इन ऑर्डर टू डिस्कस the effective teacher education program, firstly we shall discuss certain aspects, and in the process we shall outline the lecture as we usually do in our different lectures. So you can see that this is the elements, and you can also say the parameters of effective teacher education program. So in this we are discussing student selection, program objectives, curriculum, evaluation, and again the elements and parameters continues, and we will discuss coordination among input, output and process, manpower planning, vocational value and professional development, and research work. So all these are, you can say, 8 elements or parameters we will discuss separately. Let us see, we are discussing here the student selection. Effectiveness of a program depends on the effectiveness of a student selection, and there are so many factors we shall discuss later. It also depends on how effectively the objectives of the program or course have been identified or defined. Then it also depends on the curriculum. If the curriculum is not effective, we cannot imagine a program that will be effective. And again, it's effective mechanism of evaluation. So the effectiveness of a program also depends on the effective mechanism of evaluation. It again depends on effective coordination among input, output and process. It depends on manpower planning. The teacher education program is missing this manpower planning. We will discuss later in detail. And development of vocational and professional value of the program. Of course, it depends on the professional development and the vocational value of the program. Effective research work is very essential for an effective program, and we shall again continue with this effective research work, because without effective research work we
cannot find a program that is effective. So let us start the lecture. So इफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, अभी हमने आप लोगों को बताया कि इफेक्टिवनेस के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स भी आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि कोई एक फैक्टर बहुत प्रभावी है भी तो इन टोटलिटी प्रोग्राम इफेक्टिव होगा इसकी कोई संभावना नहीं है तब तक जब तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं इफेक्टिवनेस के, सब में एक कोऑर्डिनेशन हो, सब में एक इंटीग्रेशन हो। यहाँ हमने लिखा है। तो प्रोग्राम के क्रम में आप देखें, हमने शुरू में डिस्कस किया कि व्हाट आर दी एलिमेंट्स और पैरामीटर्स ऑफ इफेक्टिव टीचर एजुकेशन। सो फर्स्ट इज स्टूडेंट सिलेक्शन, हाउ वी सेलेक्ट द स्टूडेंट, हाउ द प्रोग्राम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, the objectives of the program have been defined, how the curriculum has been developed or framed, what are the mechanism of evaluation that are being employed in order to evaluate the teacher, learner and even the program itself in the system, how input of the program, output of the program and process of the program are integrated or coordinated. If there is no coordination, then effectiveness will certainly be influenced. मैन पावर प्लानिंग, अभी हमने कहा भी कि मैन पावर प्लानिंग लैग करता है टीचर एजुकेशन में। कैसे, इसको हम लोग फिर अलग अलग सारे पॉइंट्स में जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर है वोकेशनल वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम, मतलब नौकरी वगैरह से संबंधित ये बातें हैं, आगे और क्लियर होंगी। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब जो टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्या इंतजाम है। और फिर लास्ट में रिसर्च। सो ऑल टुगेदर वी आर टू डिस्कस 8 पैरामीटर्स और एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव टीचर एजुकेशन। यू कैन ऑल्सो से दैट दीज मे बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम as mentioned in our ML curriculum, you can say. So 8 factors, पहला फैक्टर हम लोग का है इफेक्टिव मोड ऑफ स्टूडेंट सिलेक्शन, क्योंकि स्टूडेंट सिस्टम का इनपुट माना जाता है और उसके सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। और क्या क्या ध्यान रखना होगा यदि हम इफेक्टिव स्टूडेंट सिलेक्शन को डिफाइन करना चाहें तो हमें डिस्कस क्या क्या करना पड़ेगा। कंटेंट, नॉलेज फॉलोड बाय अवेयरनेस। हम जनरली जो टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट्स का, उसमें जनरल अवेयरनेस का टेस्ट करते हैं। आमतौर पे जब हमें एक टीचर का अपॉइंटमेंट करना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसका सब्जेक्ट नॉलेज साउंड हो। एक मैथमेटिक्स का टीचर यदि जनरल नॉलेज ज़्यादा जानता है लेकिन मैथमेटिक्स कम जानता है तो वो कभी भी अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। मतलब ये कि जब हम स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें उसके कंटेंट नॉलेज को निश्चित रूप से बहुत ढंग से सिलेक्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स टीचर को बहुत कुछ जानना चाहिए और इस क्रम में अवेयरनेस को भी सिलेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन कंटेंट नॉलेज का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। और यदि हम वेटेज देना चाहें तो मैं कहूँगा कि ये 90% to 10% होना चाहिए। यदि हम जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग वगैरह को इम्पोर्टेंस देते हैं जो आमतौर पे हम लोग दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टेस्ट करते हैं, उसकी तुलना में यहाँ हमको 90% वेटेज देना चाहिए कंटेंट नॉलेज को। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी विद्वान हो, यदि उसके पास बुलंद आवाज़ नहीं, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के मैकेनिज्म उसके पास नहीं है और वो तुतलाता है, ढंग से बोल नहीं सकता है, तो और वो कुछ भी हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, लेकिन एक शिक्षक नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी हम स्टूडेंट के सिलेक्शन करते हैं तो उसमें हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट का कम्युनिकेशन जो स्किल है वो इफेक्टिव हो। मतलब जब हम टेस्ट लेते हैं तो इस रिटन टेस्ट के बाद एक टेस्ट हमको कम्युनिकेशन के लिए
और फिर और कैसा बोलता है, कैसे इंटरेक्ट करता है आदि पे भी बल देना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़रूरी है। जो प्रोस्पेक्टिव टीचर है, जिनको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं टीचर बनाने के लिए। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य है एटीट्यूड टुवार्ड्स टीचिंग प्रोफेशन। जनरली ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फेलियर होके चले आते हैं टीचर एजुकेशन में, और अपने ईगो को, अपने फेलियर को तमाम उम्र अपने साथ ढोते होते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि वो जितना दे सकते हैं सिस्टम को उतना नहीं दे पाते हैं। इसलिए एटीट्यूड का फेवरेबल होना टीचिंग प्रोफेशन में वैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं। और फिर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है और उस पर समुदाय के विकास की जिम्मेवारी है। स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ को अच्छे बनाए रखने, जो आजकल एक बड़ी समस्या आ गई है, बच्चे छोटी छोटी बात पे अपने जान को देने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर जो है उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो वो बहुत अच्छा हो, वो स्टूडेंट से, कम्युनिटी के मेंबर से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि इफेक्टिव मोड ऑफ स्टूडेंट सिलेक्शन में कंटेंट नॉलेज का होना, कम्युनिकेशन स्किल का होना, एटीट्यूड फेवरेबल का होना और गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का होना जरूरी है। लिहाजा जब भी हम टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करते हैं तो इन 4 फैक्टर्स पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये सीधे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के इफेक्टिवनेस को प्रभावित करता है। दूसरा फैक्टर हमने लिया है कि जो टीचर एजुकेशन का ओवरऑल प्रोग्राम वो इफेक्टिव है, और उस इफेक्टिवनेस के लिए जरूरी क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग ढंग से स्पेसिफाई करें। Effectively specified objectives of the program is essential for the effectiveness of any program. It is not true with respect to the teacher education program only, unless or until the program is having a sound, clearly specified, effectively specified objectives. The program may not be effective. And in this context, we have to consider domains of educational objectives. हम सभी जानते हैं कि बीएस ब्लूम ने कॉग्निटिव, एफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की बात की। कॉग्निटिव फैक्ट्स, कंसेप्ट्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, मतलब पढ़ने पढ़ाने से संबंधित जो बातें हैं उसके संदर्भ में हम कह सकते हैं। इफेक्टिव फीलिंग, सेंटिमेंट्स, इमोशंस। और यदि हम क्लासरूम ट्रांजैक्शन और पढ़ने पढ़ाने के संदर्भ में कहें तो निश्चित रूप से ये एटीट्यूड और इंटरेस्ट। और फिर साइकोमोटर, वे सारी क्रियाएं जिन क्रियाओं के संपादन में हमारी मांसपेशियां कार्य करती हैं वो साइकोमोटर डोमेन का हिस्सा है। अच्छा लिखना, अच्छा चित्र बनाना, अच्छा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करना, ये सब भी शिक्षा के लिए जरूरी है। और गांधी ने कहा कि खराब लिखावट अधूरी शिक्षा की निशानी है। और इसी क्रम में गांधी ने भी कहा था एजुकेशन ऑफ 3H। H का मतलब हेड, heart and hand. So this is also telling in terms of the Bloom's taxonomy, that is we have to take care of all these related aspects, that is cognitive facts, concepts। हम थ्योरी पढ़ावें, ज्ञान दें, ये जरूरी है, लेकिन हम भावात्मक विकास करें क्योंकि हमें मानव समाज का निर्माण करना है, ये भी जरूरी है। और इसीलिए विश्व की इतनी समस्याएं आ रही हैं। दूसरा फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें अच्छे लिखने वाले, अच्छे एक्सपेरिमेंट करने वाले, अच्छे पढ़ाने वाले लोग भी चाहिए। तो एक कोऑर्डिनेशन हो। जब हम किसी भी प्रोग्राम का, खासकर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर रहे हैं तो हमको तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिकेशन में इन सारी चीज़ों को वेटेज मिलना चाहिए। इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट 2019 ने भी कहा है कि अब क्यूरिकुलर और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर को अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर भी क्यूरिकुलर के बराबर ही जरूरी है। और दूसरा कि हम लोग एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करें अमॉन्ग रादर बिटवीन इंस्ट्रक्शनल एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स व्यवहार
के सापेक्ष में, मतलब हमारे अधिगमकर्ता के व्यवहार में पढ़ाने के फलस्वरूप जो परिवर्तन होगा उसके सापेक्ष में जब व्यवहार को उद्देश्य को परिभाषित किया जाता है तो उसे हम लोग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। सो इंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव ये मैनेजमेंट के टर्म में या फिर कह सकते हैं मुख्य रूप से टीचर के टर्म में डिफाइन होता है, और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स स्टूडेंट्स के बिहेवियर में होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष में डिफाइन होता है। तो ये दोनों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव सेम डायरेक्शन में जा रहे हों, उनका कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि इफेक्टिवली स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स भी जरूरी है इफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को, और इस क्रम में जरूरी है कि हम तीनों डोमेन जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का है उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स में इनकॉर्पोरेट करें और कोशिश करें कि हमारे इंस्ट्रक्शनल और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के बीच एक इंटीग्रेशन हो, कोऑर्डिनेशन। तीसरे एस्पेक्ट के क्रम में हम लोग इफेक्टिव करिकुलम जिसको पढ़ते हैं। करिकुलम इज नॉट सिलेबस, इस पे हम लोग दूसरे पेपर्स में विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं, और यदि हम एक लाइन में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि करिकुलम इज इक्वल टू सिलेबस प्लस ऑल अदर रिलेटेड एक्ट एंड एक्टिविटीज। तो करिकुलम कैसे बनेगा, इसके लिए जरूरी है कि हमारे प्लानिंग इफेक्टिव, और प्लानिंग का मतलब क्या है, मैन पावर प्लानिंग, मतलब हमको कैसा टीचर चाहिए ये प्लान करना चाहिए, कौन कौन सा गुण उसमें होना चाहिए, क्या क्या विशेषताएं उसमें होनी चाहिए, इसके लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और प्लान करके जब हम करिकुलम बनाएं तो जो करिकुलम हमने डेवलप किया है वो ट्रांजैक्ट ठीक से। जनरली जैसे हम लोग देखते हैं कि आज का जो हमारा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उसका ट्रांजैक्शन बहुत पुअर है। जैसे हम इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करते हैं, 4 महीना भेजते हैं बीएड प्रोग्राम के क्रम में, इवन एमएड में भी भेजते हैं, लेकिन जो उसका पर्पस है वो बहुत पार्शियली हम लोग अचीव कर पाते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन पे भी तीसरी बात है कि इवैल्यूएशन हम करिकुलम का करें। तो कहा गया है कि करिकुलम इवैल्यूएशन मस्ट बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इस क्रम में जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो इवैल्यूएशन के साथ साथ ये जरूरी है कि हम मॉडिफाई भी करते चलें। करिकुलम में इस तरह के मॉडिफिकेशन की जरूरत है, यदि किसी चीज़ को बदलने की जरूरत है तो हम उसमें को रिवाइज भी करते चलें। सो दी curriculum evaluation must be a continuous process, and keeping in view the feedback we must modify and revise the curriculum। and इस क्रम में तीसरा एस्पेक्ट ये आता है इफेक्टिव करिकुलम में कि बैलेंस अमॉन्ग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हमने कहा कि करिकुलम जब हम डेवलप करते हैं तो करिकुलम डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, करिकुलम मैनेजमेंट, करिकुलम ट्रांजैक्शन, ये सब मिला के करिकुलम। तो मतलब जितने भी करिकुलम बनाने के, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन हो, चाहे करिकुलम का इवैल्यूएशन हो या करिकुलम का ट्रांजैक्शन हो, मैनेजमेंट हो, ये सारे में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्योंकि इफेक्टिवनेस के सेंस में भी हमने कहा था कि इफेक्टिवनेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम ड्यूरेशन, नेक्स्ट है कि टाइम ड्यूरेशन एंड मैनेजमेंट, हम कितना टाइम रखें। हम कभी कहते हैं 1 साल का बीएड, 2 साल का बीएड, 4 साल का बीएड, इसके पीछे एक रिसर्च होना चाहिए। इफेक्टिवनेस सारे प्रोग्राम का एम्पिरिकल स्टडी से देखी जानी चाहिए, तभी हम प्रोग्राम को बढ़ाएं। क्योंकि जब 2 साल का डालते हैं तो हमारा करिकुलम का बहुत सारा हिस्सा जहाँ रिपुटेशन, हम प्राइमरी टीचर पर एक अलग प्लानिंग और पॉलिसी का पेपर बना देते हैं, हम सेकेंडरी एजुकेशन पे एक अलग पेपर बना देते हैं, हम इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफरेंट कई जगह डाल देते हैं, तो रिपीटेशन भी बहुत ज़्यादा करिकुलम में हो जाता है क्योंकि हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। और करिकुलम मैनेजमेंट, उसको पढ़ाना कैसे करिकुलम ट्रांजैक्ट होगा, जिस रूप में ट्रांजैक्ट करना है। हम कहते हैं कि अभी हमको प्रैक्टिकल का एस्पेक्ट 20% रखना है, क्या हम रख पाते हैं? यदि नहीं रख पाते हैं तो हमारे प्रोग्राम का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। अभी कोरोना काल में चल रहा है कि आप ऑनलाइन दे दीजिए, इवैल्यूएशन ऐसे करा लीजिए। यदि हम ये सब करेंगे तो हमें ये सोचना है कि हमारा करिकुलम या हमारे प्रोग्राम का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो डिफीट होगा। सो टाइम ड्यूरेशन एंड मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल। एंड द अदर एस्पेक्ट दैट इज इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ एजुकेशन, मतलब जब हम टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को चला रहे हैं तो
नॉट इवेल्युएशन ऑफ द करिकुलम। इवेल्युएशन ऑफ द करिकुलम हमने अलग से करिकुलम के रेस्पेक्ट में सिर्फ कहा। यहाँ हम कह रहे हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है जो रन कर रहा है, हम जो क्लास 2 साल चला रहे हैं, उसके क्रम में जो हम लोग इवेल्युएशन करते हैं उसको भी इफेक्टिव होना होगा, क्योंकि बिना इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ इवेल्युएशन के कोई भी प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं हो सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि हमारा जो इवेल्युएशन हो वो कंटिन्यूअस। हम मतलब थोड़ा इवेल्युएशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, साल भर की जगह पे हमने बहुत सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इवन क्लासरूम ट्रांजैक्शन में भी हमको इवेल्युएशन करना होगा। टीचर को जानना पड़ेगा एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट को कि उसकी कठिनाई क्या है, उसका ज्ञान कितना है। और इस कोरोना काल में जब हम लोग इवेल्युएशन के लिए चिंतित हो रहे हैं, तो यदि हम एक अच्छा मैकेनिज्म डेवलप करें इवेल्युएशन का, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि टीचर इवेल्युएट करके दे दे और हम उसको फाइनल मार्क के रिजल्ट दे दें। हमको इस स्तर तक पहुंचना होगा और ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा शिक्षा व्यवस्था का। तो इवेल्युएशन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन नेचर। ये नहीं कि थोड़ा सा कट टेस्ट करके हम इवेल्युएशन, इट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव। हम 2-4 यूनिट का टेस्ट नहीं करें, टोटल। और कॉम्प्रिहेंसिव का इवेल्युएशन का मतलब है कि जितने भी कंसेप्ट हम पढ़ते हैं सारे का इवेल्युएशन हो। नॉट ओनली दिस, इसमें हमें डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का भी ध्यान रखें। मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ रिटन एग्जाम ले सकें, हम ओरल भी लें, हम चित्र भी बनवाएं, हम उनके इमोशंस का भी टेस्ट लें। तो कॉम्प्रिहेंसिव इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट एज वेल एज अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। अब हमको एक बैलेंस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये समस्या बहुत बड़ी है। कई लोगों ने कहा कि अब इंटरनल इवैल्यूएशन से ही सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, और इस संदर्भ में बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन माना ही जाता है कि जो हमारा इंटरनल सिस्टम है वो बायस है, इसलिए हमको एक्सटर्नल एग्जाम पे डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। हम लोग शुरू में जब बीएड प्रोग्राम को देखेंगे, खास के हमारे स्टेट का जो बीएड प्रोग्राम था उसमें इंटरनल इवैल्यूएशन बहुत कम था। अब हम लोग इंटरनल इवैल्यूएशन को 20% टू एक्सटर्नल इवैल्यूएशन को 80%, मतलब 20:80 के टर्म में लाए हैं। लेकिन इसको हमें लगता है कि कुछ और बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन इसमें जरूरी है कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच एक बैलेंस हो, दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं, रादर सप्लीमेंट्री। और फिर ये इवैल्यूएशन में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन एंड नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन का भी परसेंटेज कितना हो। क्योंकि जब हम किसी तबला वादक का सिलेक्शन बिना तबला बजाए नहीं कर सकते हैं, तो बिना पढ़वाए और बिना सारे जो रिलेटेड स्किल्स है उसको इंटरनलाइज लर्नर ने किया है या नहीं किया है, उसको टेस्ट किए हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो क्राइटेरियन डिफरेंस इवैल्यूएशन का मतलब है कि इवैल्यूएशन अगेंस्ट गिवन क्राइटेरिया, मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिखने आया, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने आया, रीइंफोर्स करने आया, एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द टीचिंग स्किल्स, देयर आर अदर स्किल्स। तो पैरामीटर्स बनाने की जरूरत है और उस पैरामीटर्स पे इवैल्यूएशन करने की जरूरत है। और नॉन रेफरेंस का इस्तेमाल तो हम लोग कर ही रहे हैं कि जैसे जो सबसे अधिक नंबर लाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसके आधार पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सो क्राइटेरियन डिफरेंस इवैल्यूएशन मास्टरी लर्निंग की तरफ इशारा करता है, तब जबकि नॉन डिफरेंस क्लास नॉन, एज नॉन, मतलब अपने एज के, अपने क्लास के रेस्पेक्ट में वो बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, इसके लिए करते हैं। तो हमें, मेरा ये मानना है कि यदि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को सुधारना है, ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, तो ये कम से कम 50% इवैल्यूएशन तो क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन से होना ही चाहिए। क्योंकि हमें टीचर चाहिए, पढ़ाने के लिए चाहिए, कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए। हमको एग्जामिनेशन पास करके 80% लाने वाला टीचर सिर्फ नहीं चाहिए। वो अच्छा फिलोसफी जानता है, वो अच्छा साइकोलॉजी जानता है, वो अच्छा कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स को जानता है, लेकिन क्या वो उसको ट्रांजैक्ट कर सकता है, अपने व्यवहार में ला सकता है? तो इस तरह से जब हम लोग देखते हैं, पाते हैं कि इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन एसेंशियल पार्ट है किसी भी इफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। और इस क्रम में ये जरूरी है कि वो कंटिन्यूअस हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में ऑप्टिमम वेटेज,
मतलब बैलेंस हो, और फिर क्राइटेरियन और नॉन डिफरेंस इवोल्यूशन के बीच में ऑप्टिमम बैलेंस हो। ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाने से स्टूडेंट्स का कंप्लेन आता है और देखने में भी उनको कठिनाई होती है। इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाकी के जो 4 अदर पैरामीटर्स और एलिमेंट्स हमने जो डिफाइन किए हैं उसको दूसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब इफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम और इसके एलिमेंट्स और पैरामीटर्स को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग दूसरे लेक्चर को ऑर्गेनाइज करेंगे। इस लेक्चर को अभी यही हम लोग खत्म करते हैं। सो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द सेम थीम। थैंक यू।